Hello friends, in this series of Green Talks, we have tried to get understanding of different green aspects like green building, green architecture, green institutes, green affordable housing. Today we are taking a very important topic which is indoor air quality with respect of HVAC. I'm specifically telling like with respect of HVAC because सर जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं ना तो मेरे दिमाग में हमारे आईजीबीसी में कमल मेटल हैं वो आ जाते हैं जो ऐसा लगता है कि वो ना लाइक अभी आजकल मैं महाभारत बहुत देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि वो भक्ति करते हैं फॉर एयर पॉल्यूशन एंड लाइक हिज होल लाइफ ही हैज वर्क फॉर द एयर कंट्रोल एंड एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंडोर एयर क्वालिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ एचवीएसी. To maintain the indoor air quality role of HVAC is very crucial and thus it has an important impact and contribution on disease transmission in healthcare facilities, the workplace, home, public and recreational environments. Today we have with us very renowned specialist of the subject, Mr. Rajan Vyas. Mr. Rajan Vyas is an HVAC consultant practicing for more than 2 decades and has successfully handled domestic and international projects. His field of interest is clean room projects and handled many pharmaceutical and hospital projects. He is currently handling few prestigious hospital projects which are designed following ASHRAE and NABH standards. He is founder president of ISHRAE Baroda chapter and past regional director West at ISHRAE headquarters. He is immediate past president of ASHRAE Western India chapter and attended many international chapter regional conferences. At present, he is a member of ISHRAE Marketing Committee and committee member of technical group of ISHRAE preparing guidelines on healthcare facilities. So he is doing a great job, and since 1990 he is into this HVAC field, and he has worked for many reputed companies, Godrej, Blue Star, self-employed. Though he has a very good profile, but I have seen him with a very down-to-earth profile. Yes, nice. Indoor quality has indeed an important aspect of not only green buildings but for our health too. After COVID, now we have all become very conscious and aware as now we see indoor quality as indispensable and as a life saving aspect. Let us understand how it is important to all of us. सर सबसे पहले मैं आपको एक बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बिकॉज ये हमारा जो सेशन है वो नॉर्मली मास के लिए है तो मैं आपसे ये बताना पूछना चाहूंगी कि एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट इज इंडोर एयर क्वालिटी and how it is important to us domestically or and institutionally also. Yeah, first of all, thank you, Nituji, for this very nice introduction. And I liked when you said that it's your approach is down to earth approach, so that's a good appreciation. I thank you for the same. Yeah, anyway, so now indoor air quality, as it says, see, normally when a building is designed, so now since we are on the verge of this green talk, other things, so in that reference, I would say that normally when the building is designed, so whether it is a hospital or pharma building or industrial, whatever it is generally your green building consultant or architect takes care of it. However, we come in picture when there is indoor air quality. See, it is very important from for a human being and for residents' point of view in industry, in pharma, anything that whether you know this term or not, it is called a sick building syndrome. If you know, I don't know. So, but since you said it is for the layman's like, so sick building syndrome that takes care of this indoor air quality. Sick building syndrome in a very layman's language, I would say that a building which is designed without taking care of ventilation, the outside air. See, normally it is said for sick building syndrome that if a person is working for 8 hours in that particular building, in particular office or something, then the one who is outside is having a better or he is breathing a better air quality than the one inside. Yeah. Okay. Now, in what sense I would say, well, even if you are in your bedroom or in your living room or in your office, anywhere, see there has to be a fresh air, which is Yes. fresh air or outside air we call it.
Now, there are so many other aspects of outside and fresh air. We'll not take this, but I will say that when there is outside air, so that means that air comes with an adequate quantity of oxygen. Hmm. Okay, so now for breathing, we everybody knows we breathe air, oxygen, and we exhale out Hmm. carbon dioxide. Hmm. So now, if the building is not designed properly, Hmm. ventilation is not there. Cross in house, there is no cross ventilation. Then if you are staying there for overnight, you are sleeping in your bedroom or in the office for 8 to 10 hours. Then just imagine that the concentration of oxygen will reduce and the concentration of carbon dioxide will increase. Hmm. Like you will be inhaling the carbon dioxide which I exhale, and I'll Yes. be inhaling like someone's. So Hmm. if that continues, then the over period of time, maybe depending on your immunity, maybe 4 months, 6 months, 1 year, something, you will start getting a chronic headache, Yes. or chronic fever, or continuous nose dripping, eyes dripping, something that sort of thing, cough, it will remain. Hmm. So Hmm. these are the syndromes. So indoor बिल्कुल. air quality is very important, not to see that your building or your house, your bedroom doesn't come under sick building syndrome. Hmm. Other घर में भी, I would say, the in residence, you are saying that the laymen are from this point of view, other everybody is watching. Hmm. Then अगर bedroom में भी आप रात को सो जाते हो, I have seen, mean, I have talked to few people also. उन लोग क्या, when the summer approaches, they Hmm. have general feeling कि रूम बंद ही रहना चाहिए, so the air condition रहेगा तो टेम्परेचर रहेगा, otherwise it will go away. Hmm. So but I advise to everyone that Hmm. रात को अगर आप when you start your air conditioner, Hmm. next day morning, no sooner you are out of the Hmm. bedroom, you open all the windows, Hmm. doors and everything, see that there is cross ventilation, so the Yes. indoor air quality improves. Indoor air Hmm. quality, today we talk from this point of view that there is a sufficient amount of oxygen has to be there. Hmm. Otherwise, if you I have seen people bedroom में रहने के बाद they don't open their windows also, Yes. door भी close करके. There has Hmm. to be, you must be doing cross ventilation. Yes. This Removal of the like carbon dioxide and हाँ, replacement of the carbon dioxide with oxygen, that is very important. मैं आपको अभी यही पूछने वाली थी कि नॉर्मली जैसे HVAC अगर है तो AC होता है तो नॉर्मली अपना सब लोग बंद रखते हैं एंड इसके अंदर टनेज जब देखते हैं तो अपन लोग ये भी देखते हैं कि कितनी बार दरवाजा खुला कितनी बार बंद हुआ, एयर लीकेजेस कितने हैं वो सारे देखते हैं. तो दैट मीन्स जो HVAC का इक्विपमेंट है दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वो ही एक्सचेंज कर रहा है आपकी पूरी एयर को. तो उसमें मतलब क्रॉस वेंटिलेशन का जो रोल है वो भी किस तरह से मैटर करता है, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी. वो आपने बता ही दिया कि मीन्स लाइक जब एसी नहीं चल रहा हो तो एटलीस्ट खुला रखना चाहिए. no, I tell you, see, in industry also, in big offices also, when we design with अपने रूम में तो वो split air conditioner होता है, हम्म. लेकिन हम्म. एक ही होता है. And for your information, we specifically add some amount of some percentage of the outside air in that. हम्म. There हम्म. is a what you can volume control damper के साथ there is a pot is there which continuously takes outside air. हम्म. Continuously it has been added. हम्म. तो ओके. ये अपने ये स्प्लिट एयर कंडीशनर में सो दैट प्रोविजन इज नॉट देयर. सो यू हम्म. विल हैव टू टेक बाय ओपनिंग योर विंडोज, योर डोर्स एंड अदर थिंग. एंड हम्म. ड्यूरिंग दिस, अपना टाइटल भी है कोविड, पोस्ट कोविड है, तो हम्म. हियर आल्सो वी से दैट इट डज. अच्छा, यस, व्हाट यू नाइसली सेड कि भाई अपने फ्रेशर होता है तो टन आता है एंड अदर थिंग. बट सी, इफ यू वी रेकमेंड नाउ डेज, ये कोविड का जो चल रहा है पोस्ट कोविड सिचुएशन में, वी सेड दैट इन योर बेडरूम आल्सो यू थोड़ा फ्रेश एयर का बाहर से आने दो. हम्म. विंडो ओपन रखो, डोर को ओपन रखो या कर्टन लगा के रखो, बट लेट द आउटसाइड एयर कम. द रीजन हम्म. इज द concentration of that particles would reduce them, हम्म. हम्म. and fresh air from oxygen point of view is very important. यस. वो तो होना ही यस. चाहिए. अभी सर आपने जब बात करी ना, ये मेरे क्वेश्चन में तो नहीं है बट एकदम से मेरे को ख्याल आया कि जब इंडोर एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर बहुत सारे घरों में जाते हैं जो तो उसमें ना वाटर सीपेज की वजह से ना एल्गी फंगस ग्रोथ होता है एंड कई बार ना उसमें इसके अलावा भी वीओसी कंटेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में होता है. तो जब अंदर अगर डैम्पनेस अगर आ रही है तो उससे जो स्मेल से ये बैक्टीरियल ग्रोथ से जो
आपकी एयर क्वालिटी खराब होती है, तो एज ए एचवीएसी कंसल्टेंट क्या आप वो सारा भी कंसिडरेशन में रखते हैं? I'm sorry. नहीं देखिए, when we design for the room it is okay, or bedroom, but हम्म when we design a big building or industry or pharma company or हम्म hospital anything, so we take care of humidity also. It ओके is designed, but ये हम्म not specific what you said कि seepage के लिए जो humidity होता है, that we don't हम्म take into account. We generally believe that the building आपका सही है, हम्म it is not, there is no seepage or something, there is no leakage or everything, that you will have हाँ to take care of. Generally ये हाँ, because air quality becomes part of the HVAC, so probably this is one of the big thing that, just a minute. Wait, yeah, sure sir. Kunal, phone लेना. Yeah, sorry, there is an important call. Yeah. या सो वो अभी आपसे बात करते करते ऐसा रियलाइज हुआ कि मतलब एयर क्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ एचवीएसी, सो प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद कहीं ना कहीं आप लोग को आगे कंसिडरेशन में लेना चाहिए. Yes, yes, yes. Yes. Oh, My next question is, sir, people are saying that not to use AC as it is risky in Corona. So, what do you say? People like this is a misconception, and इस बात से मुझे एक याद आया सर कि हम मैं भी कुछ दिन जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक हमारे फ्रेंड है अनिल देव, मैं उनसे बात कर रही थी फोन पे, वीडियो कॉल हुआ तो उन्होंने सारे बाल निकाल रखे थे एंड मैंने कहा ये क्या हुआ, तो बोले कि बहुत गर्मी लग रही है और हमारा टॉप फ्लोर पे है घर और सब ऐसा AC बोल चालू रहे हैं नहीं. कि एसी बंद रखना है, तो बहुत सेटिंग भी हो रहा है, तो आई वाज लाफिंग. मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि कूल टॉप लगाइए अपनी छतों पे. That's very nice. That's very nice. सो ये वहां से मतलब इट हैपेंड कि भाई आप तो हम लोग एक्चुअली बहुत सारे आश्रय आश्रय के सारे सेशंस देख रहे थे, तो उसमें एग्जैक्टली exactly ऐसा भी बताया गया कि भाई अभी जैसे पहले ऐसा था कि आप 24 डिग्री आप लोग का एक हम लोग का एक, जैसे मैं भी अभी तो आश्रय आश्रय की मेंबर हूँ, तो अपन लोग का एक अभियान चला था कि हमको 24 डिग्री पे करना चाहिए, 1 डिग्री भी कम करेंगे तो थंब रूल से 6% हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे. तो अगर ये कोविड की वजह से अगर हम 27 या 28 पे लेकर जाते हैं टेम्परेचर, तो प्रोबेबली वो थर्मल कंफर्ट शायद ना आए, बट ये अभी शायद थंब रूल आपका अभी ऐसा है कि 27 to 28 डिग्री होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी 40% के आसपास 40 to 70 होना चाहिए, ये ऐसा मतलब ऐसा सुना है, तो ये दोनों चीजों में क्या सच और क्या मिथ है? Yeah, no, no. This is a very nice question you asked, and in my few webinars also I discussed this. See, first of all, I'll tell you. Abhi bhi, if you come to my room, my office, mein, and anytime you can come. Not हम्म today. Since so many years, there is always a 27-degree temperature. हम्म Always, and it is हम्म very comfortable. हम्म Just for your information, I tell you. See, अगर बाहर से हम लोग आते हैं, when we come, तो बाहर हम्म गर्मी होती है, तो you will feel very hot. So I हम्म have seen people standing in front of air conditioner, ठंडी हवा आती है, and other thing. You हम्म know that all हम्म natak they are doing. I would say natak, but the thing is, if you sit there for even at least 4 to 5 minutes, योर your बॉडी body गेट. temperature will be this thing. And 27. अभी भी I cannot पूरा turn करके नहीं दिखा सकता. You can see it is 27 degree. I am not हम्म sweating, nothing. I am very हम्म much हम्म comfortable since morning. हम्म So first thing, forget के हमने तो 24 से प्लस किया है, 24 25 समथिंग, बट इफ यू मेंटेन 26 27, यू इवन ट्राई इट आउट, तो इट इज वेरी मच कंफर्टेबल. हम्म Even at my residence in my bedroom हम्म also, हम्म 26 27 27 is the temperature we generally put. हम्म So try to maintain this. Okay. हम्म And secondly, very important, you said कि भाई ये COVID में they are saying कि भाई air conditioner नहीं चलाना and other thing. हम्म So in my last webinar also I discussed. I'll tell you हम्म the actual incident what happened. हम्म See, there was one radio jockey. हम्म Someone forwarded me that clip, and हम्म there was a known radio jockey from Gujarat. Okay, he was हम्म taking ये करीब एक महीने पहले की बात है when the lockdown was there. So he हम्म was taking interview of a celebrity couple. हम्म So then he asked him कि मैम अपने, it was Gujarati but I'll tell you in Hindi. He says कि मैम अपने यहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड का बहुत डेंजरस है, अभी इतनी गर्मी भी है, हम लोग एयर हम्म कंडीशनर भी उसके लिए नहीं चला रहे हैं, तो आप हम्म लोग ये क्या क्रिएटिविटी कर रहे हो इन लॉकडाउन में, इन योर हम्म फोर वॉल्स करके. हम्म So what she answered, I did not bother. But what struck me that fellow so casually said,
कि इतनी गर्मी है और हम लोग एयर कंडीशनर भी नहीं चला रहे हैं बिकॉज ये कोविड के वजह से. सो दैट स्ट्रक मी. आई सेड देन इमीडिएटली जो मेरा फ्रेंड था ना उसको मैंने फोन किया. उसने भी मेरे को फिर दूसरों दो तीन ने भी कहा कि ये कोविड में जैसे कि एयर कंडीशनर नहीं चलाने का, तो इज इट ओके, इज इट सेफ, इज इट नॉट डेंजरस? सो फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हिम, आई सेड व्हाई यू से दिस? तो ही सेज कि सब लोग बोलते हैं कि ठंडी में रहता है तो कोरोना वायरस ज्यादा स्टेबल होता है, एनी अदर थिंग समथिंग. तो आई सेड यू रन रेफ्रिजरेटर घर पे चलाते हो, चालू है? तो ही सेज यस. आई सेड तो क्यों, वहां पे तो कूली भी होता है ना, वहां पे तो रूम से ज्यादा कूल कंडीशन होती है. तो ही सेड के बाद इट इज पीपल से कि भाई एयर कंडीशनर नहीं चलाने का क्योंकि ठंडा है, नहीं अदर थिंग. सी नाउ आई टेल यू, ये उनको जो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट. What the fact they have heard, I will tell you. Okay, I'll first discuss with you those facts. Okay, see, this coronavirus is not a bacteria; it is a pathogen. Okay, Yes. so this is causing virus. Okay, now it is also understood. It is a fact that it is stable in cool temperature. So it will remain stay alive for the longer period of time. And third is, there are so many other. But third is, see, this virus is not self-generating virus. Okay, it is always from infection से contagious disease के हिसाब से वो चलता है, मतलब contagious infection से ही लगता है. Now I'll tell you one thing. These three facts, if you consider, now it is we have understood that there is a moving stale water होता है तो the moss gets developed. और नहीं तो गर्मी में अपने कुछ खाना बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर वो फंगस डेवलप हो जाते हैं, फूग we call it. So these are self-generating bacteria, while this virus is not self-generating. रूम में एयर कंडीशनर है या हमारे एयर कंडीशनर की कॉल के आसपास ठंडा टेम्परेचर है, आपने पूरा टाइम चलाया, तो इट इज नॉट गोइंग टू डेवलप दिस वायरस. इट इज दिस वायरसेस आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग. यू अंडरस्टैंड? तो उसको दिस विल अकर ओनली इफ, अगर रूम में मैं, आपके फैमिली में कोई है, किसी को इफ हैज अ पॉजिटिव, it will grow only in the body. then किसको उसको अपना वो है इस सिस्टम अपना क्या बोलते हैं, then only it is going to circulate. Otherwise ये एयर कंडीशनर चलाने में there is no problem at all. You get me? So many people they said अभी they are also saying कि अभी मेरी ऑफिस चालू हो जाएगी तो कॉन्फ्रेंस रूम होगा मेरी ऑफिस, तो shall I run air conditioner? I said अगर if आपकी ऑफिस में अगर कॉन्फ्रेंस रूम में 10 लोग बैठे, if no one is having positive symptoms, what is the problem? These are not self-generating viruses. कोई होगा तो पूरा टेम्परेचर अगर आपका डाउन एकदम नेगेटिव में होगा तो भी कुछ जनरेट नहीं होने वाला है. बिल्कुल, that's true. Get my point? यस. तो पर इसमें एक फायदा तो हो गया सर, वो जो आप 1 डिग्री बोल रहे थे उसकी जगह अब और people will start under fear also. अपने यहाँ पे क्या है 27-28 डिग्री पे लेके आएंगे, तो दैट इज वेरी गुड. ये बात है कि सर बिल्डिंग एनवेलप वैसे मैटर करता है. जैसे अगर आप फुल टॉप्स का बिल्डिंग एनवेलप लगा ले या तो रूफ पे या वॉल्स पे, तो इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल इन 27-28 डिग्री. और एक डिग्री दे कैन गो डाउन. बिल्कुल सर. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि इंडोर क्वालिटी विल बी नाउ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू ऑल बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, especially for the commercial buildings. As we adjust to new normal, what all will be the risk mitigation strategies that building owners has to adopt when employment now exactly they are all are returning to work, and in this global pandemic will reshape the way we design the commercial buildings for time to come? No, certainly not. I said it is not self-generating. No, but like according to the like अच्छा कुछ और हमको HVAC से related कुछ भी हमको change आपको नहीं लगता कि कुछ होगा? I tell you, people are saying कि अभी मेरी ऑफिस, yesterday only I got a call कि हमारी 3 story बिल्डिंग है, लगभग 200-300 लोग काम कर रहे हैं, पूरा सेंट्रल प्लांट डाला हुआ है. सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द एयर कंडीशनर. लोगों को पीपल हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स दे आर fear, they are saying कि नहीं हमको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, ऑफिस नहीं आना है. So how do I convince them? I said first thing, the same thing I said, you see that there should not be any person who is corona positive.
सिम्टम्स नहीं होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ इन अ रूम 200 आदमी हो या 2 आदमी हो या 20 आदमी हो, अगर वहां से कोई एक भी पॉजिटिव है, then there is definitely going to be a circulation because air conditioning circulation. But if there is no symptoms, what is the harm in it? See, हम लोग उसको मैंने बोला, you don't have to take any care from a corona point of view, but the thing is, ये दो महीने आपका एयर कंडीशनर प्लांट बंद पड़ा है, तो उसको मोल्ड और फंगस वो सब डेवलप हो गया, वो सब जाले वाले हो गया, तो फिल्टर निकाल के क्लीन करो, टेक्नीशियन को बुला के उसको कॉइल बॉइल क्लीन करो, फ्यू आवर्स के लिए ड्राई रन जाने दो, तो अंदर डक्ट के अंदर जो भी है दैट विल रहेगा. कीप द विंडोज ओपन. अगर थोड़ा एयर कंडीशनर चलाना है, लेकिन विंडो ओपन करके एयर सर्कुलेशन, एयर चेंज करो. बिल्कुल. You know, that is all. Otherwise, from corona point of view, there are no precaution or nothing to be taken. ओके. कोई सवाल ही नहीं है, कहाँ से आएगा वो आपके ऑफिस में तो 2 इसका महीने बाद? मतलब हम ऐसा सोच रहे थे कि फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछने वाली थी कि जैसे HVAC कंसल्टेंट्स नॉर्मली हेल्थ केयर बिल्डिंग का जब करते हैं तो IAQ को कंसर्न करते हैं और हेपा फिल्टर्स और वो सब लगाते हैं, या नॉर्थ में लोग बाग बहुत लगाते हैं उसको बिकॉज ऑफ द स्पेशली विंटर्स के टाइम में एयर प्योरीफाइज लगाते हैं. तो मैं ऐसा सोच रही थी कि शायद अब एयरपोर्ट्स में, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस या इंडोर जहाँ पे पब्लिक होगी, ऑफिसेज, वहां पे भी हमको शायद अभी ये इंडियन एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ हेपा फिल्टर्स या कुछ एयर प्योरीफायर्स लगाने पड़ेंगे. तो आपको ऐसा लगता है कि अब वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है? रादर आई विल से कि 2 महीने से तो अपना बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट ऑन द कंट्री ज्यादा क्लीन हो गया है अभी तो. ओके. दो महीने से तो बाहर से व्हेन वी टेक बाहर की आउटसाइड एयर, फ्रेश एयर वी कॉल इट, हम लोग लेते हैं, तो पहले तो हम लोग वी यूज्ड टू पुट द फिल्टर्स एंड एवरीथिंग. अभी तो ऑफ कोर्स विल बी पुटिंग इट लेटर ऑन आल्सो. ये तो 2 महीने का उसका रिजल्ट है जो ये आ गया, सो दैट इज ओके. बट अदरवाइज अभी जो आप बोल रहे हैं कि अभी किसके लिए चेंज करने का, आई डोंट अंडरस्टैंड. बाहर का कुछ क्लीन हो गया है, बाहर बाहर जनरली इफ यू आर सेइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर एटमॉस्फेयर में कोरोना है और वो अंदर आएगा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सेइंग. देखिए, आई हेलो हेलो अच्छा, हाँ, ओके, या ओके. हाँ जी, हाँ, या ओके, हाँ, हो गया. हेलो, आई कांट हियर यू.
Hello. अभी हुआ सर? आवाज आई Hello. अभी? हाँ हाँ अब या I'm so sorry, but actually ये जो टेक्निकल ग्लिच होते हैं उसमें हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। we'll have तो to get yeah, we'll I'm have, so sorry. I'm sorry to the other audience also. But anyhow, to get connected again is a big thing. yes, yes. No, so in this digital we'll have to get used to it now. ये तो होता ही रहेगा या अभी तो. या जैसे होते हैं ना सर, बॉम्बे में जाते हैं तो अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फिर अगर आप लेट हो जाते हैं तो सामने वाला समझता है So कि हाँ ट्रैफिक हुआ होगा अपने या. हाथ में कई बार नहीं होता है। yes. So what you are बस asking के ये नए बिल्डिंग जो भी करो उसमें डिजाइन करे कि नहीं ऐसा considering this हाँ corona. No, see, I tell you, this हाँ coronavirus is not airborne particle. You understand first thing. Airborne हम्म means the particles. See, when we sneeze out, so it is observed that the so minute tiny particles are there. They remain in air for at least 4 to 6 months. See, remember this thing. That is the reason you will have to cover your ओके face when you sneeze. There are so tiny particles, and ओके these particles are called ओके airborne particles. Whereas this हम्म virus, coronavirus, is not airborne. It will be when it is thrown out, maybe as they say 1 meter or 4 feet, it goes out, then it settles down. See, this is also ओके very small particle. The diameter of this coronavirus one हम्म is about 0.12 micron. You हम्म understand? One micron is 1,000th या part of mm. So this is या 0.12 micron. So very tiny. यस When it is thrown out, it हम्म adheres to some particles and it has been thrown out to इट some extent सेटल्स डाउन and settles down. हम्म So हम्म these are not airborne particles that when we design the air conditioning system, we take care of this. So I don't think so there will हम्म be any change in air conditioning designing of air conditioning system. No, हम्म only thing is you'll हाँ have to take care of this. Oh, yes, sir. Okay. You'll have to take care of when you exhaust it out. See, in healthcare हम्म industry, in the hospitals, हम्म these are isolation rooms are there. There is a typical design is there, isolation हम्म room. So, so that is under, normally it is under negative pressure. So हम्म negative pressure is then if the fellow is in if the patient is in the room, हम्म isolation room. So when हम्म you open the door, when the doctor or anyone enters, the outside air enters inside. हम्म The हम्म inside air doesn't come out because it is an हम्म infected air. So, हम्म so this air has to be exhausted out. हम्म So nowadays, up till now, we used to put some filters or HEPA filters हम्म at the exhaust. हम्म But now, if it is for the COVID patient, then we'll हम्म have to take that air out. हम्म It has to be scrubbed. ओके If you know the meaning of scrubbing, मतलब air जाके वो disinfectant का solution होता है उसके हाँ अंदर उससे बबल ट्रीट हो करके जाएगा हाँ हाँ बबल करके निकाल देने का because वो हाँ उसमें dissolve ओके हो जाता है. ओके So ओके so that will have to take care. But in air हम्म conditioning system, we don't have to take any care. ओके Exhaust के लिए you'll have to be very particular. You cannot just throw it in air. पर सर फिर जैसे अभी आश्रय ईश्वरी की भी हमने जब सेशंस अटेंड किए थे तो जो ये पूरा न्यूज में भी आया कि आपको इतना टेम्परेचर 27 से 28 निकलना है और 40 टू 70 ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है फिर इसके अंदर? No, see that the actual meaning of करने में क्या है कि if you feel कि अभी अपना यहाँ पे कोरोना का सस्पेक्ट है और डेंजरस है समथिंग ऑफिस में, हम्म we say कि normally outside in HVAC we take good deal of outside air in air conditioning design. The हम्म reason behind is to reduce the concentration of inside particles. Maybe हम्म dust particles, or if it is a hospital, then infected particles or something. हम्म Okay, so here we हम्म say that you increase the concentration by increase the fresh air, or if it is हम्म not possible from AHU, then you open the windows. हम्म So when you open the windows and air condition is on, so हम्म temperature is definitely going to go up. Maybe. हम्म So that is the reason we say get used to 27, 28 degrees temperature and keep ओके the windows open, and so that you can reduce the concentration of हम्म infected particles. हम्म That is the reason we say, okay, yes, you get used to it. ओके And automatically, as you said earlier, it will start, people will, under fear या also, they will start. So बिल्कुल सर, सो that, is, दैट्स गुड. that is the reason mainly, yeah.
ओके। सर आपने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपने अपना एचवीएसी डिजाइन या पर्टिकुलरली जो ग्रीन रेटिंग के लिए जा रहा हो ऐसा, बिकॉज अदरवाइज तो क्या है हम जो नॉर्मल अगर आप आश्रय इश्रय का अगर देखेंगे तो उसमें जो हम लोग आज बीई रेटेड जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं या कुछ भी चीज ऐसा यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी हम ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। इन्वर्टर वाले एसी हैं तो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये एक ओवरऑल अवेयरनेस ऑलरेडी है। तो वो हम ऑलरेडी मेंटेन करते हैं, तो शायद आप अपनी डिजाइन में भी मेंटेन करते होंगे। बट कोई ऐसा ग्रीन प्रोजेक्ट आपने पर्टिकुलरली किया है कोई जिसके अंदर आपने डिजाइनिंग दिया हो अपना? हाँ, हमने सूरत सूरत में एक प्रोजेक्ट किया है। इट इज हाँ। अंडर रेटिंग में चल रहा है। बट सी आई टेल यू, ये ग्रीन कंसेप्ट जो है वो मे बी आई वुड से 10-15 साल से इट हैज कम इन मार्केट, और मे बी हम्म। एट लीस्ट पास्ट डिकेड इट हैज बीन वेरी हम्म। सीरियसली बीन टेकन। हम्म। बट when we design a hospital, हम्म। so we take under design of standard ASHRAE standards. On basis of ASHRAE standard we हम्म। design it. एंड ये हम्म। जो आप अभी आजकल ग्रीन बिल्डिंग का बोल रहे हैं ना, दिस हम्म। ऑल लाइक फ्रेश एयर लेना, क्रॉस वेंटिलेशन, हम्म। रिड्यूस द VOC और बिल्डिंग ऑटोमेशन, दिस ऑल आर ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ बाय द ASHRAE. हम्म। ASHRAE is हम्म। more than 100-year-old society, and all the standards are settled for this. And for हम्म। hospital, if you talk particularly, standard 170 gives total in detail, or for detail for all the parameters for all the departments in the hospital. So ये हम्म। तो आपका ग्रीन का तो अभी चल रहा है, लेकिन but we are designing since long on the basis of this green concept. ओके। और आपको ग्रीन में भी दे हैव इवन रिफर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट ASHRAE स्टैंडर्ड टू बी रिफर्ड. So these things are going हाँ। since long. Any hospital हम करते हैं उसमें. And see, for flooring we see that flooring is carpet, and other thing is not that VOC generating carpets are not there. We हम्म। did epoxy flooring and everything. ओके। So it doesn't generate VOC. Then यस। see, to hospital में operation theaters में nowadays they are asking for temperature as low as 20 degree also. So हम्म। you imagine 20 degree, and sometimes and as I said, to reduce the concentration of those particles, we add good amount of fresh air, outside air also. So the हम्म। tonnage increases, the quantity of हम्म। size of AHU, the power, everything increases. Okay, so in that case, then we are since long we are taking care of energy recovery ventilators or energy हम्म। recovery wheels, if you know. हम्म। So that will reduce the inside load, the total power consumption it reduces. हम्म। We are nowadays also using variable frequency drives also. हम्म। So हम्म। if there is a load variation, that will be taken care of. So these ओके। are this way or that way all being taken care of. ओके। हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन, फ्रेश एयर अपने ग्रीन में भी यू आर सेइंग कि इतने क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर होनी चाहिए. Even हाँ। they mentioned that the sick building syndrome to be avoided. So हम्म। that has all been taken care of. We are taking care in कोई भी हॉस्पिटल में होगा तो. Then the हम्म। machines होते हैं, उसके efficiency we take. हम्म। High efficiency wala ho, that we are doing to reduce the power consumption. हम्म। That is all we are doing. ओके। जैसे आश्रय श्री की गाइडलाइन में जैसे हम ग्रीन में हम लोग जैसे ग्रीन रेटिंग जब करते हैं तो प्री ऑक्यूपेंसी एंड पोस्ट ऑक्यूपेंसी बहुत डेटा वापस से मॉनिटर किया जाता है कि जो आप डेटा समझ कर रहे हो आप है ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आश्रय श्री की गाइडलाइन से जब आप एचवीएसी डिजाइनिंग करते हैं तो पोस्ट ऑक्यूपेंसी भी आप जो सीएफएम मेंटेन करना होता है डिजाइन के बाद, तो you do that post occupancy monitoring of the CFM and all? So that data has to be submitted. Okay. Green building का certification Hmm. लेने के लिए all these data have to be submitted. Before Okay. means like when you design, what was your criteria, and after designing what you are getting, Okay. whether it is matching or not. Okay. It has to be, yeah, everything has to be done for that. ओके एंड जैसे आईजीबीसी में होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या ग्रीहा की कोई भी रेटेड बिल्डिंग अपन करें तो हाँ. अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द बिल्डिंग द थिंग्स आर डिफरेंट, मीन्स द नॉर्म्स आर डिफरेंट, कुछ कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलरली लाइक इन एचवीएसी आल्सो यू आर कंसीडरिंग ऑल दोज थिंग्स, या जो थंब रूल्स ही होते हैं सारे या No. We never see when we design any air conditioning system in industry or somewhere. We never go by thumb rules. There are all हमारा engineering में
there is a elective subject air conditioning, refrigeration, and all this detailing heat load calculations and everything. There is a standard sheet available. We never know because, Okay. and if it is to be a green building, then we'll have to submit the documents. We never submit a document that this is by thumb rule, this is we have reached. You'll have to scientifically prove, no? So How you have, हाँ, द वे हम लोग मतलब सिमुलेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं हाँ, डिजाइनिंग एस्पेक्ट से, वैसे यू हैव सॉफ्टवेयर एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड yes, सबमिट द calculations and सेम. everything. You'll have to justify it, ne? ओके. हाँ, नथिंग बाय थंब रूल. थंब रूल तो क्या है, अगर 10 by 10 की ऑफिस है तो पीपल आर टेकिंग, ये शोरूम वाले जो होते हैं सब, यू नो, दे डोंट हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड. दे बोलते हैं 10 by 10 की ऑफिस है, चलो ये के हिसाब से 150 टन स्क्वायर फीट हिसाब ले लो, 200 स्क्वायर. दैट इज नॉट द वे. मे बी लिमिटेड टू ऑफिस होगा तो ठीक है. व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री यू कैन नॉट डू इट. नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके. और जैसे ग्रीन बिल्डिंग में नॉर्मली जैसे आश्री का जो आपका गाइडलाइन है 62.1, तो उसमें जो सीएफए बोला होता है तो उससे 30% एक्स्ट्रा दे हैव एक्स्ट्रा टू लेते कीप. हैं, तो मतलब दिस इज लाइक नॉर्मल आप बिल्डिंग्स में आप लोग नहीं मेंटेन करते हो, बट अगर ग्रीन बिल्डिंग होती है तो ही आप लोग मेंटेन करते हो. मेंटेन करते सो यू डू सी एनी लॉजिक बिहाइंड दिस कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Yes, definitely. From health point of view, it is definitely important. The 30%, as you said, you know it 30% बढ़ाना है. तो इतना आप बढ़ाओगे तो see, in the beginning only I said that concentration of oxygen is to be maintained in a very literal layman's language, I would say. तो अंदर ह्यूमन हेल्थ, यू नो, कोई भी आपका ग्रीन बिल्डिंग का होगा तो द क्राइटेरिया इज एनहेंसिंग द ऑक्यूपेंट्स कंफर्ट. यू नो, यू हैव टू एनहेंस समहाउ. तो आप इतना करोगे तो वहां पे डेफिनेटली हेल्थ पे इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ओके. अगेन सामने उसका पावर कंजम्पशन एंड अदर थिंग बढ़ जाता है. तो फॉर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस ईआरवी एंड अदर थिंग, because power consumption has to be reduced again. That has to be maintained also in green building. ओके सर. और एक मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आया कि लाइक अभी आजकल कैसा है कि ऑनलाइन डेटा होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या क्या ग्रीन स्ट्रैटेजीज की हैं, चाहे वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे आपका एनर्जी एफिशिएंसी का मेजर हो, या आपका एयर क्वालिटी का हो, तो आपका मतलब सेविंग कितना होता है, एंड एवरीथिंग इज लाइक रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लाउड पे आपका डेटा होता है. एंड उसके अंदर जैसे कहीं पे भी ड्रिप आता है तो मतलब अगर कहीं पे भी कोई आपका अगर इक्विपमेंट खराब है, या आपका फॉर एग्जांपल जैसे सोलर पैनल्स में भी होता है कि आपको एफिशिएंसी पता लगती रहती है स्टैंडर्ड, और कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट कर देता है, सो दैट यू कैन टेक द कॉल, मेंटेनेंस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस है, अगर रात को भी वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग में आता है कि आपका ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो प्रोबेबली कहीं लाइट आपकी ज्यादा चल रही है. तो ऑनलाइन ये सारा, तो उस तरह से एचवीएसी के लिए भी लाइक इज देयर सम ऑनलाइन सिस्टम एंड सम थिंग्स लाइक दैट कैन यू कैन से कि भाई हाँ ये अब इसमें ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो बाहर बैठे हुए भी आप यू कैन से कि भाई ये गड़बड़ इक्विपमेंट में एंड यू नीड टू चेक दिस थिंग. Yes, yes. मुंबई में बैठा हुआ और कोई किसी फॉर एग्जांपल एनी कंपनी का इंजीनियर है, देयर इज अ डिफरेंट रूम ऑल टुगेदर. वो चेन्नई में चल रहा 200 400 600 टन का प्लांट का पूरा मॉनिटरिंग इज डूइंग फ्रॉम देयर, एंड ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स पूरा जो ऑटोमेशन बोलते हैं ना, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट कम्स इन दैट ओनली. वो आदमी वहां बैठा बैठा एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ हिम. अगर उसका चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर या सप्लाई टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, ही विल इमीडिएटली कम टू नो. अगर कुछ पार्ट हो गया तो इमीडिएटली ही विल गेट द एरर कोड देयर. तो वहां पे there are so many companies in India also, I would say, that they are not keeping any maintenance fellow, any operator. वो these companies मुंबई में बैठे या इवन वापी में जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चरर, उनके वहां पर भी है. दे ऑल सिट देयर, पूरा एक लैपटॉप लेके उसके अंदर एवरीथिंग दे मैनेज, दे ऑब्जर्व इट कंप्लीटली. उसका रिकॉर्ड भी मिलता है. इफ द क्लाइंट सेज कि मेरे को कल का जरा रिकॉर्ड दो, दैट रिकॉर्ड इज आल्सो अवेलेबल. एचवीएसी में पूरा इट इज बीन डन, पूरा ऑटोमेशन हो सकता है. यस.
सर अभी जैसे अगर हम आईजीबीसी को देखें, लीड को और आईजीबीसी को देखें, तो लीड अभी वेस्टर्न साइड से आ रहा है, और वेस्टर्न साइड से अगर है, और इंडियन एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। और अगर हम आईजीबीसी में भी देखें तो लाइक अलग 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 जो क्लाइमेटिक जोन है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो भी अपने अपने रूल्स बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं, गाइडलाइंस लिए, दे आर डिफरेंट। तो क्या आश्रय के भी गाइडलाइंस में, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में द थिंग्स आर डिफरेंट, द नॉर्म्स, द गाइडलाइंस आर डिफरेंट आश्रय Yes, निश्चय में? yes. उसमें they mention वहाँ पे जो climatic condition as per this climatic condition, some climatic condition is differ, then there are some correction factors are given there also. You'll have to take care of those correction factors. सर मेरे And को ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो आश्रय इश्रय जो है ना, शुरुआत से आर वैल्यू पे और इंसुलेशन पे बहुत इम्पैक्ट दे रहा है, मींस दे स्ट्रेस अ लॉट। जबकि जो आर वैल्यू है, दिस इज मोर ऑफ मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हॉट एंड कोल्ड ट्रांसमिटेंस। सो आर वैल्यू इज मोर ओवर लाइक कि मतलब आपका ये ठंडा या गर्म दोनों साइड जो है ना, आपका ट्रांसमिटेंस कम हो। तो हमारे यहाँ पे उस चीज का चलन ज्यादा है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन क्या कर रहा है, आपका जो एनवेलप है पहले वो हीट अप हो रहा है, मतलब आपकी छतें और दीवारें गर्म हो रही है, और उसके बाद आप उसका ट्रांसमिटेंस रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज इंडिया में हमारा सोलर गेन ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो सन से जो गर्मी पैदा हो रही है वो ज्यादा है, तो आपकी जो एनवेलप है वो अपने आप में गर्म हो गई है। एंड उसके बाद अगर हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो वी आर गिविंग मच स्ट्रेस ऑन द इंस्टॉलेशन पार्ट इन द आर पार्ट। बट मैंने आश्रय इश्रय में ये एचवीएसी कंसल्टेंट्स को कभी ये नहीं देखा कि दे आर गिविंग अ स्ट्रेस टुवर्ड्स SRI value. I'm not telling you about my product, but cool paint use नहीं कर रहे. ये मेरे दिमाग में हमेशा Yeah. से ये आता है कि why this concept, because India is a hot country, और ऐसी अगर आप देखेंगे दुबई है या कोई भी है, तो सभी हॉट कंट्रीज है। अगर आप कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग एनवेलप गर्म हो गई है, उसके बाद आप उसका ट्रांसमिटेंस रिड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब व्हाट इज दैट बेनिफिशियल, आपकी छत और दीवार गर्म ना हो, एंड देन यू हैव वेरी लेस इंसुलेशन टू बी डन टू रिड्यूस द कोल्ड ट्रांसमिटेंस। तो मेरे को वो लॉजिक समझ नहीं आता, तो मुझे कई बार फिर ऐसा लगता है कि मे बी आश्रय इश्रय जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, वहां पे कोल्ड कंट्रीज होती है। No. See, I'll tell you. अभी एक जॉब दहेज में हम लोग कर रहे थे. Their company is a French company. तो उसका हमने when we are every 2 months, once in the 2 months he comes there. तो we were discussing कि भाई ये उसका facing इतना है, तो he says कि this is the facing कितना है, तो फिर why you have taken this heat load and other thing, and we were discussing this. Then ultimately it comes out to be the cost factor. We said कि बाहर ये लगाओ, इतना करो, तो अंदर कितना फर्क पड़ता है. So it is उसको कंट्रोल करने के लिए जितना टनेज बढ़ाना पड़ता है, दैट इज नॉट वेरी ह्यूज, बिकॉज अपने यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली इट डजंट रन, तो रात को टाइम में इट इज उसका इफेक्ट हो जाता है. सर सर थोड़ा सा ना होल्ड हो गया था, अगर आप रिपीट करेंगे तो इट विल बी गुड. अच्छा, ओके. आपका नेट, हाँ आपका नेट होल्ड हो गया था. मेरा नेट होल्ड हो गया. अच्छा, अभी ठीक है सर. हाँ अभी ठीक है, बीच में हो गया था, अभी ठीक है. ओके. हाँ जी. So I was saying that in Dahej में we are doing one company, और तो उसमें the French company is there. The French engineer comes once every 2 months. वो हिसाब से तो we were discussing. So he says कि ये this particular face is totally facing the wall, is totally facing the sunlight directly. So why you have taken this much? यहाँ पे you don't need insulation and other thing. Then I said okay, insulation के बदले you can take the paint also. मैंने आपका ही पेंट रेकमेंड नहीं किया था, कंसीडर किया था. तो I said ये पेंट बाहर लगा सकते हैं, और you can put the insulation inside something. But the cost factor comes in Indian condition में, cost also makes the difference. ये क्या है कि वो जो पर्टिकुलर वॉल फेस एरिया था ना, उसमें ही सेज कि इसकी कॉस्ट कितना होगा, और उसके हिसाब से टनेज में कितना चेंज आता है. See now, there is no much huge difference in tonnage, and when we are having a chill water system, वाटर में इतना टनेज इज बीन एब्जॉर्ब्ड, उसके लिए एडिशनल पावर कंजम्पशन और अदर थिंग नहीं होता है. सो दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन. इट्स नॉट लाइक दैट वी ब्लाइंडली फॉलो आश्रय निश्चय का जो भी है वो हिसाब से, बट समटाइम्स वी ट्राई आल्सो. अच्छा, हैड इट बीन
पूरा काफी बड़ा एरिया एंड डायरेक्टली जनरली नाउअडेज व्हाट वो करके पीछे बफर रखते हैं, इफ देयर इज एन ऑफिस और समथिंग द पीपल पुट आर्किटेक्ट पुट अ पैसेज देयर, so that will act as a buffer even if it is facing directly the sunlight. So in such cases ये आउटसाइडर शायद आई थिंक आपकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है कि क्या पता नहीं. नहीं सर, कॉस्ट तो ज्यादा नहीं पड़ती है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे एचवीएसी कंसल्टेंट्स, आपको पता है, पर बहुत सारे कंसल्टेंट्स वगैरह को वो एसआरआई वैल्यू और ये सारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और आइदर लाइक कभी कभी तो मुझे पता है क्या लगता था कि शायद ये लगाने से एसी का टनेज उनको ना कम लगाना पड़े, तो हो सकता है उसकी वजह से एचपीसी कंसल्टेंट्स ना ये यूज नहीं करना चाहते कि भाई उनको ज्यादा टनेज. नहीं देखो, कंसल्टेंट इज देयर, हम उसका टनेज के हिसाब से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट द सप्लायर, नॉट द कॉन्ट्रैक्टर. we definitely try to reduce the tonnage, I tell you, but I say that this is my personal experience. वो फ्रेंचमैन के साथ वही हुआ, he says कि अच्छा ये इतना फेस का, if you put this thing or if you put the insulation, what is the cost, and उसके हिसाब से what is the reduction in tonnage. So इतना huge reduction नहीं हो रहा था, and we were using chill water temperature. So chill water हमारा already about 800 टन का प्लांट था डिजाइन. तो 800 टन के प्लांट में अगर 2 टन या 3 टन बढ़ता है, so that can very well be absorbed. So again, तो वो उतना एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है. That is what the cost factor comes in picture. Otherwise वो तो एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता है सर. जैसे अगर आपका नॉर्मल पेंट है उसकी जगह आपको रिफ्लेक्टिव पेंट लगाना है, रूफ पे आप चाइना मोज़ेक लगा रहे हैं, कोई भी टाइल लगा रहे हैं, उसकी जगह आप रिफ्लेक्टिव पेंट लगा रहे हैं, दैट्स ऑल. मींस यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. कोई चीज का कॉस्ट आप कट करके कोई चीज आप लगा रहे हैं, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग एक्स्ट्रा. इनफैक्ट आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. नहीं, आपका पेंट और रेगुलर पेंट में कुछ कॉस्ट में भी तो फर्क है ना. नहीं, पेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. रूफ के ऊपर जरूर है कि रूफ के ऊपर जैसे, क्योंकि इट हैज अ सिस्टम टू बी अप्लाइड सो दैट वो सेल्फ सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसका भी अगर कॉस्ट आप दूसरे किसी चीज से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा नहीं होता है. तो इट्स कॉस्ट इज नॉट अ मैटर, इट्स मोर ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना मेजरली एक नॉर्मल पेंट की तरह मान लिया जाता है, और लाइक एकदम से कॉन्फिडेंस आने में मुश्किल लगता है कि शायद एक पेंट सब कैसे कंट्रोल कर देगा. तो मे बी दैट इज वन ऑफ द वैसे तो देखो, आप तो when you go for marketing तो आप तो वो प्रूफ भी देते हो, सर्टिफिकेट्स भी देते हो, you are prepared to give one trial shot also, everything. So that is not the matter, उसका नहीं है. But the only thing is I said कि पूरा बिल्डिंग का एरिया उसको करना है, तो if it is not continuously facing the sun, तो उसको पूरा लेने में क्या प्रॉब्लम? आई डोंट नो. I don't know. Anyway, हम इसको ऑफलाइन ले लेंगे. आर्किटेक्ट पे छोड़ दो. हम लोग तो रेकमेंड करते हैं, देन आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं ये कलर नहीं मिलता है, वो नहीं है, ये कलर है, वो मॉन्सून में होगा, अदर थिंग. नहीं सर, ऑफलाइन हम लेंगे कि आश्रय में अगर बिल्डिंग एनवेलप को हम कंसीडर करते हैं टुवर्ड्स कैलकुलेशन, तो कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे. दूसरा सर, लाइक आर यू अवेयर अबाउट द आर इफेक्टिव, मींस आर इफेक्टिव भी कंसीडरेशन में होता है? इश्रे आश्रय में कुछ आर इफेक्टिव टर्म होती है? आर इफेक्टिव? यस सर. No idea. I have not referred so far. Could be, हो भी सकता है इंसुलेशन का पर्टिकुलर चैप्टर होगा उसमें, हो भी सकता है. I have not gone in detail of this insulation chapter. Okay. सर दूसरा मेरे को एक ऐसा था कि जैसे चिलर्स में अगर हम देखें तो एयर चिलर्स भी है और वाटर चिलर्स भी होते हैं. कूलिंग के लिए एयर एंड वाटर बहुत दोनों यूज किया जाता है. तो एयर चिलर में एग्जैक्टली 4.5 to 4.7 COP आता है, बट अगर वाटर चिलर देखें तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो फार मच बेटर होता है, 6.7 COP. तो आपके हिसाब से मतलब फिर भी अगर देखें तो वाटर चिलर्स को उतनी वेटेज नहीं दी जाती है, तो उसमें आपका क्या कहना है? See, I tell you, when we design something, it again comes with the balancing of everything. Like अगर 200-400 टन का है और उसके ज्यादा है, क्या है, तो चिलर वाटर कूल लेना है कि एयर कूल लेना है, that first we fix the tonnage, then we come which type we have to take. Now see, in water cooled chiller there is maintenance ज्यादा हो जाता है.
द हाँ. थिंग इज चिलर होगा तो चिलर के 2 3 4 पंप आ गए, कूलिंग टावर आ Hmm. गया, कूलिंग टावर के पंप आ गए, कूलिंग उसका मेंटेनेंस आ गया, कूलिंग टावर का पावर आ गया, कूलिंग टावर का मेंटेनेंस आ गया, उसका पानी का जब झमेला, सो ऑल मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग इंक्रीजेस विद दैट। Hmm. Whereas if we see the comparison, अगर एयर कूल्ड है, ज्यादा नहीं है टनेज, और तो सीधा मेंटेन, ऑफ कोर्स इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एयर कूल्ड होगा तो जगह ज्यादा यूज कर रहा है, लेकिन Hmm. मेंटेनेंस वो सब कम हो जाता है ना, दूसरी कोई झंझट नहीं है, Hmm. एक बार चालू किया वो हो गया, कोई कोई चिल वाटर का पंप नहीं है, कूलिंग टावर का नहीं है, ये नहीं है। फॉर योर एग्जांपल, ये अभी हमने वी हैव टेकन दैट डिसीजन, ऑफ कोर्स फ्यू इयर्स बैक, वी हैव टेकन 5 7 years बैक, कि अपना सीसी मेहता ऑडिटोरियम है, Hmm. सीसी मेहता ऑडिटोरियम, दैट वाज अर्लियर वाटर कूल्ड, उधर चिलर था, एब्सॉर्प्शन चिलर था, दे चेंज इट। Hmm. So they were facing lots of problem in maintaining cooling tower pump, cooling tower का valves and other thing, cooling tower का pumps, उसकी cooling tower की motor, everything. So they said Hmm. कि साहब इसको किसी तरह निकाल दो, because that tonnage was about 120 25 tonnage, it's a small tonnage I would say. So Hmm. then we decided why not we go for this air cooled. So that is the reason we Hmm. had gone. And उधर क्या इतने उतने में we are not taking much consideration COP का फर्क कितना पड़ता है, efficiency कितना फर्क पड़ता है. Had it been more than 5 700 tonnage, Hmm. 1000 के ऊपर, then all these factors come in picture. क्लाइंट का मेंटेनेंस वाला पार्ट आता है। अदरवाइज जैसे ग्रीन बिल्डिंग में हम मेजरली लाइक वी गो फॉर वाटर चिलर्स, water, yes. उसको पानी को अच्छे से ट्रीट करके ट्रीटेड वाटर इज यूज सो दैट जो वाटर सही है। बी रीट्रीटेड एंड यूज्ड एंड उसका यूटिलाइज, तो प्रोबेबली इट कैन बी रीयूज्ड। दूसरा मुझे सर ऐसा पूछना था कि जो अपना इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर इज देयर सम एक प्रोटेक्टिव ऐसी कोई लेयर ऑलरेडी आती है, या मुझे आपसे बात कर कर ऐसा लगा कि लाइक प्रोबेबली नेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कैन बी देयर दैट कैन एक्चुअली प्योरीफाई द एयर दैट इज कमिंग एंड गोइंग, दैट सॉर्ट ऑफ अभी कुछ ऐसा प्रोविजन है इक्विपमेंट्स में? इंडोर एयर क्वालिटी में बोल रहे हैं ना, इंडोर एयर। हाँ, हाँ, इंडोर एयर क्वालिटी में जो भी अपने एसीज होते हैं या वेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, तो जहाँ पे एयर सप्लाई होता है तो वहां पे उस तरह का कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं नहीं या नहीं कुछ नहीं, ऐसा नेट नहीं होता है? एज पे वी आर पुटिंग द फिल्टर्स, फिल्टर्स होते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट पे फिल्टर्स होता है, लाइक इफ इट इज अ हेल्थ केयर, सो वी हम्म। समटाइम्स हैव 2 3 banks of filter, first हम्म। 10 micron, then 5 micron, then 3 micron, and then terminal point 3 micron, to that extent if it is required। कोई जगह पे if it is वो ऑफिस है, कंफर्ट है, तो there we take only 1 bank of filter, it हम्म। is like that, the filter वहाँ पे we are taking। filters is only with the like consideration of the particle size, means जो mesh size होते हैं उसी के बेस पे होते हैं। हाँ yes। सर अभी 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 जैसे मैंने थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी किया है, तो उसके अंदर नैनो सिल्वर एंड नैनो टाइटेनियम का एक रोल निकल के आता है। तो उनका जो नैनो टाइटेनियम का रोल है दैट कम्स इनटू आयनाइजर एज अ एयर आयनाइजर आल्सो, एंड नैनो सिल्वर का एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल का रोल भी आता है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक ये एक अच्छा तो है, मतलब एयर को प्योरीफाई करने के लिए, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कुछ आना चाहिए इससे रिलेटेड, बिकॉज वाटर के अंदर भी अभी आजकल ऐसे कार्ट्रिज होती है जैसे कूलर्स के अंदर डाल दी जाती है, तो उसका जो पानी है ना वो पूरा महीने भर तक खराब नहीं होता है, स्मेल नहीं आती है, बिकॉज वो जो नैनो सिल्वर है वो बैक्टीरिया को ट्रीट, वो पानी को ट्रीट करता रहता है, उसके बैक्टीरिया को जो जर्म्स होते हैं डेवलप उनको किल करता रहता है। तो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट difference can come after the COVID in the design and the equipment system. नहीं, again I would tell you, again I would say, why after COVID? Yes. yeah, why people are unnecessarily, दिमाग में सेट है। अल्टीमेटली घूम के वो हमारे गुजराती में बोलते हैं ना, हल्कू नाम हवालदार नो, ऐसा, इफ यू डोंट आई डोंट नो यार, व्हाई घूम फिर के कुछ भी हो तो एयर कंडीशनर पे व्हाई इट कम्स इन। See, अभी आई टेल यू, एक समवन फॉरवर्डेड मी कि ये रेस्टोरेंट में गया था वहां पे, तो व्हेन वी ही एंटर्ड उसको कोविड नहीं हुआ था पॉजिटिव, फिर वो जाके बाहर आया तो उसको गया, द रीजन व्हाई, रीजन एयर कंडीशनर चालू था। अरे एयर दैट इज रिटन, आई सेड व्हाई एयर कंडीशनर, अगर एयर कंडीशनर बंद होता, अगर फैन होता तो उसके एयर सर्कुलेट नहीं होती क्या?
तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनर ये जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो ये तो खाली सर बदनाम अपने हो आप गया है। में कोई भी अगर कोविड न भी देखे देन ऑल्सो इट्स यूजफुल। अगर एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अगर ये इस तरह का कुछ डेवलपमेंट होके आता है तो इट्स गुड। No, I'll tell कोविड you. न I'll भी tell हो। you. Ashray President Mr. Boyce हाँ हाँ officially issued a statement to WHO chief को। अभी मेरे को हाँ एग्जैक्टली क्या है आई डोंट नो, बट ही वेरी क्लियरली टू लाइन, दो दो पैराग्राफ का उसने भेजा है कि यू प्लीज रन एयर कंडीशनर। दिस इज ऑफिशियली स्टेटमेंट डब्ल्यूएचओ को भेजा है उसने, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सी द हम्म फैक्ट्स इज देयर बट इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन कि कूल हुआ ठंडा हम्म हुआ तो मतलब एयर कंडीशनर हो गया। हम्म ऑफिशियली आश्रय प्रेसिडेंट बॉयस हैज इश्यूड अ लेटर। अगर आप आश्रय की हाँ साइट पे हाँ जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट। He has very हम्म clearly said this. So एयर कंडीशनर के साथ मत इसको, उससे एयर कंडीशन डिजाइन में कोविड से कुछ फर्क नहीं पड़ा। एज आई सेड, जब एग्जॉस्ट करेंगे तभी वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स ऑल। तो उसके thumb rule is cross ventilation and good यस air quality यस with the cross ventilation and more of oxygen supply. That is exactly the thumb rule. और जैसे बाकी जहाँ ऐसी contaminated areas वगैरह तो infected air should not come in, और अगर आती है तो it should be circulated out. So that सी becomes the key rule यस for यस सी any design. लॉजिकली अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू रिड्यूस द concentration, that's all. And to see, to increase your immunity you will have to have the oxygen. So Yes. the cross ventilation, so आपकी immunity भी बढ़ेगी, and so that is it, that care you take। and उसके लिए अगर आपका temperature 27-28 हुआ तो get used to it, and Yeah. it is going to confirm comfortable to you। सर I एक would say नहीं, I would say नीतू जी, आज रात को आप जाके 27 पे आप रात को आपके सो जाओ, आपको पूरे I सर मेरा guarantee तो you 27 और 28 ही रहता है। that is fine, yes। तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ बस सिर्फ एक कंफर्ट लेवल रहना चाहिए तो 27 28 ही रहता हाँ, अगर है। अगर आपको एयर कंडीशन चलना है और फिर ऊपर कंबल ओढ़ के सो जाना है तो व्हाट्स द पॉइंट। हाँ नहीं 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 बिल्कुल इनिशियली माय वाइफ शाउटेड अलोंग, बट नाउ शी इज नाउ गेटिंग बिल्कुल यूज्ड टू सही इट। है। यस, अपनी बराबर है। बॉडी एक्चुअली एक्वेंटेड हो जाती है जैसे हम उसको ट्रेन करते हैं। हाँ या हाँ। और इवापोरेटिव कूलिंग के बारे में क्या कहना है सर आपका? विद इवापोरेटिव कूलिंग विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू जैसे इवापोरेटिव कूलिंग अभी ज्यादा इन ट्रेंड है अबाउट समर में ज्यादा होता है अपने यहाँ पे, और नॉर्थ में दिल्ली और वो लीडिंग साइड टू द पे। एनर्जी एफिशिएंसी आल्सो। तो मतलब इवेपोरेटिव कूलिंग अगर हम देखें तो मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ज्यादा ओपन एरियाज के अंदर जहाँ पे ओपन वेंटिलेशंस होते हैं वहां पे एग्जैक्टली इज नो नो, मोर यूजफुल। see, evaporative cooling, there is a fundamental difference in air conditioning and evaporative cooling। Air हम्म conditioning में air is recirculated, हम्म whereas in evaporative cooling, air is 100% fresh and entered, and it has to 100% go, or it has to be exhausted out। हम्म हम्म अगर वो रूम में रहा, आई सी दिस इज नथिंग बट ये अपने ये रूम कूलर सब यूज कर दो, दैट इज नथिंग हम्म बट इवेपोरेटिव कूलिंग, इट्स अ हम्म स्मॉलर हम्म वर्जन ऑफ दिस। उसको आई हैव हम्म सी लोग रूम के अंदर रखते हैं और फिर उसको घुमाते रहते हैं। तो हाँ अगर मुंबई में जो होता है, मुंबई का एटमोसफियर में फॉर सम टाइम आपका फिर है ना ये स्टिकी हो जाता है हैंड एंड अदर थिंग, इफ हम्म यू से सिमिलर ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। हम्म Otherwise, it is giving very good cooling. Of course, not as हम्म good as air conditioning, but बाहर से हम्म जितना हो उससे एटलीस्ट 5 6 7 डिग्री कम हो जाता है, ओके provided you exhaust it completely। हम्म it हम्म it has to be placed at the where it can have a more dry, warm and dry air। जितनी warm and dry air होगी उतना efficiency is better। so सो एक चीज बहुत अच्छी है सर कि मैंने ऐसा देखा है जैसे अभी हमारे साथ कुछ दिन पहले एनके ओझा सर थे, हाँ आज आप हैं। तो जो एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है ना, लाइक आप लोग जैसे इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो सबसे ज्यादा आप लोग बहुत बेसिक्स पे काम करते हैं, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ और बहुत बेसिक्स के साथ। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि अदरवाइज कैसा होता है कि जैसे जितने ज्यादा स्पेशल अगर हो कंसल्टेंट्स वगैरह तो वो और हाई फाई टाइप से मैनेज करते हो। बट ये बहुत अच्छी बात है जैसे आपने भी बोला कि सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन इज द थंब रूल। तो आपने इतने एक्सपीरियंस के बाद हर तरह की चीज ट्राई करके एग्जैक्टली यू केम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द बेस्ट थिंग एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गिव द रिजल्ट्स, सो दैट्स See, वेरी गुड। no, no. See, I tell you, in my lectures, also in webinars और सब जगह पे, if I
if I speak in Tamil, so you will not understand anything. So there is no Yes. communication. So if I start talking the hi-fi things, all the norms and other things, scientific and engineering things, and if you don't understand, what's the point in talking to you guys? See, Yes. if you don't go So, home taking something, enrich your knowledge without enriching your knowledge, what's the point in my talking to you? So it has yes. to be to the that everyone can understand. It has to be a grassroots level. And you said in the beginning only that laymen are going to listen to this. So I'll have to use that language only. So it is effective communication, isn't it? Yes. Yeah. That is it. तो मैं वैसे एक चीज के लिए सॉरी मांगना चाहती हूँ सर कि मैं नॉर्मली अपनी ये टॉक्स में ना हाई एस आर आई या अपना प्रोडक्ट को लेके बात नहीं करती हूँ, बट सिंस आज आप थे और आर वैल्यू की बात चल रही थी और वो मेरी दुखती रग थी दुखती रग पे हाथ हो गया तो इसलिए मैं बोल दी. नहीं तो सब्जेक्ट में कंसर्न था ना, so that is okay. It was not out of way you discussed. It's a part of our discussion. या तो बहुत अच्छा आपके साथ एक डिस्कशन रहा एंड बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिली एंड ये भी चीज अच्छी हुई सर कि एग्जैक्टली जैसे आईजीबीसी है या ग्रीन है एग्जैक्टली हम सब लोग ना एक अलग अलग एसोसिएशन में होके बात एक ही चीज कर रहे हैं. मतलब जैसे आश्रय इश्रय भी और एचवीसी कंसल्टेंट भी एक्चुअली वो एनर्जी सेविंग और उन सब चीजों की ही बात करते हैं. Yes. और बस ये है कि आईजीबीसी एक ओवरऑल पैरामीटर पे बात करता है और एचवीएसी या आप आश्रय इश्रय तो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी और एचवीएसी के टर्म्स में बात करते हैं. तो इट्स गुड एक्चुअली हम लोग यहाँ बरोड़ा चैप्टर भी मैं मतलब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग साथ में रह के ही काम करें और साथ में रह के करें प्रोजेक्ट्स पे और अवेयरनेस सेशंस पे, तो दैट विल बी ग्रेट. और आपको आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स. एंड आई ऑल्सो थैंक my audience for being with us and encouraging us. ये जब से सीरीज मैंने स्टार्ट की है तो people have really encouraged me because मैं थोड़ा सा घबरा रही थी तो people have motivated me, तो I thank all of them for the encouragement and thanks a lot sir आपको टाइम देने के लिए, precious टाइम देने के लिए. I am also thankful to you, to your team also, and very supportive team. And this is also a new experience, you know. ये webinar नया experience चालू हुआ. पहले we used to address. Now webinar से चालू हुआ. We are getting used to it. Now this is one-to-one talk also. So something we are learning something. So it is always welcome. Yeah. एंड टीम को तो डेफिनेटली मैं एक थैंक्स देना चाहूंगी बिकॉज अकेले करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बिकॉज जैसे एक सेशन अगर कोई होता है तो उसमें एटलीस्ट 3 दिन से दे आर विद दैट कि भाई अभी ये करना है वो करना है क्यूरेट करना है. तो डेफिनेटली दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ देम एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. Thank you, sir. Once again. Thank you. Thank It's a you, sir. pleasure being with you. Thank you so sir. much. Okay.